welcome everybody on our channel after a very long time. I hope you have had a good time, good holidays, and enjoy your time. First of all, thank you. Thank you so much for all the love and support. 1400 subscribers already हो चुके हैं. Thank you so much for that. Thank you. And I hope कि ये 1400 बहुत जल्दी 14,000, 1400,000 में convert हो जाएंगे. Just like ये अभी हुए हैं. Thank you. आपका जितना प्यार दिया आपने उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आज के सेशन में चलते हैं हम बिना ज्यादा देर किए. आज का सेशन जो हम लेने वाले हैं थोड़ा सा हटके है. अब तक जितने सेशन हमने लिए हैं सारे स्टडी रिलेटेड लिए हैं, स्कूल के सिलेबस रिलेटेड लिए हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है. आज थोड़ा सा अलग करते हैं, थोड़ा सा आर्ट की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम कथक की तरफ. आई हैव बीन ट्रेन्ड इन कथक फॉर अ फ्यू इयर्स एंड इसकी हिस्ट्री जानने में मुझे जितना अच्छा लगा, जितना मजा आया, I was hoping to give this information, spread this information with everybody, with knowledge, with everybody. तो आज हम जानेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री, the story of the art of storytelling we are going to explore today. So actually अगर देखा जाए तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. आज हम पढ़ेंगे the dance in us, the classical dance forms of India, the history, the proof of Kathak, our fifth Veda. Don't worry, fifth Veda I'll explain it to you. Controversial नहीं है कुछ. The origin of Kathak, evolution of Kathak, and how the revival of Kathak also. तो एक फेज में हमारा बेचारा कथक हो भी गया था, उसको वापस रिवाइव भी करना पड़ा था, हम सब उसके बारे में. So first let's start. What are the classical dance forms in India? There are actually 8 classical dance forms overall, among which one is Kathak. And कथक इज द ओनली डांस फॉर्म इन इंडिया जो कि एक्चुअली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डेवलप हुआ. इसका एक्चुअल डेट ऑफ ओरिजिन जो है वो काफी डिबेटेबल है. some people say it was in 2nd century, some say it was in 4th century, some say it was even before that. So original exact date जो है वो काफी debatable है amongst many scholars, as you know, which happens with many of the things that happened in their history. Because of course there were no tools at that time to document anything. So whatever is documented is still debatable of whatever the time it was actually found in. But there have been a few proofs, few evidences of the existence of Kathak dance form in a very ancient time. So in a very old excavation sites and all those temples which are very 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 old. For example, in your Harappa Sanskriti, whatever excavations were done in Harappa Sanskriti, there is a sun temple in your south, there is Mohenjo-daro, and there is your so many caves and all. वहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के स्कल्पचर्स मिले हैं जिनमें एक्चुअली स्टैचूज और पोजेस देखने को मिले हैं जो कि काफी सिमिलर है विद द पोजेस जो कि एक्चुअल में कथक में किए जा रहे हैं. Just as you can see in the slide as well, right? What happens is, you can see there's one on your left which keeps one hand like this, the other like this, which is one of the poses of Kathak. And similarly in other as well, जो कि हमारे आजकल के स्कॉलर्स ने देखा कि काफी सिमिलर है हमारे डांस फॉर्म. तो मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज एट द सेम टाइम जो हमें स्कल्पचर्स मिले हैं, के आसपास के जो स्कल्पचर्स थे उसमें लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं, दे आर हैप्पीली एंजॉयिंग, कोई ओकेजन है, फेस्टिवल है, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है. तो ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि हाँ उस समय हो सकता है कि जो डांस फॉर्म लोग एंजॉय करते थे, जब बहुत खुश होते थे तो जो डांस किया करते थे, हो सकता है कि वो कथक से लिंक रहा होगा उस टाइम. इस तरीके के बहुत से हमारे पुराने टेम्पल्स हैं. यू कैन सी अगेन हमारे सन टेम्पल के कोणार्क के जो स्कल्पचर्स हैं, यू कैन सी हाउ वन इज प्लेइंग मृदंग, द अदर वन इज डांसिंग, all these poses are there. Then there is Mohenjo-daro के sculptures as well. You can see one is doing this one, this pose, the other one is doing this pose. All of these poses are actually dances. अभी ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, यू कैन से कि ये सिर्फ कथक के हैं या किसी और डांस फॉर्म के, बट देन अगेन डांस तो डांस है एंड इट इज इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म और वो इवॉल्व हुए हैं विद टाइम. सो ये लोग बोलते हैं कि हाँ ये हमारे उस जमाने के कथक के पोजेस रहे हुए. इसके बाद बोलते हैं हमारे जो ओरिजिन है, इसकी जो नॉलेज है, मेजरली जो हमारे गुरु, हमारे बड़े बुजुर्गों को जो इसकी नॉलेज मिली थी, वो हमारे यहाँ कहते हैं कि भरत मुनि जी को थी. और भरत मुनि जी जो है, इन्होंने ये सारी जो नॉलेज है हमारे एक किताब में लिखी जिसका नाम दिया इन्होंने नाट्य शास्त्र.
नाट्य शास्त्र के अंदर आपकी आर्ट से रिलेटेड मोस्टली नॉलेज है, आपके म्यूजिक से रिलेटेड, आपके ड्राम से रिलेटेड, आपके डांस से रिलेटेड बहुत सी नॉलेज उसमें लिखी हुई है, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन पास डाउन हुई है बहुत से लोगों पे। और फाइनली आज की डेट में जो हमारा आज की डेट का कथक जो हम जानते हैं, तो जनरेशन बाय जनरेशन नॉलेज पास ऑन होते होते, मॉडिफाई होते होते, इसमें आज की जो हमारा कथक है उसका रूप लिया है। कथक के बारे में जाने तो कथक क्या है? कथक कम्स फ्रॉम द वर्ड कथा। कथा जो हमारा हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब है स्टोरी। Any kind of story is called katha, and the one who tells this story, the storyteller, is called kathak. So when we perform kathak, we are telling a story. So, what used to happen in the ancient time? Okay, the knowledge that something is happening in one place, how the knowledge would travel from one place to another. So, this travel of knowledge used to happen through people who used to travel. Since there was no mode of transmission of knowledge, any electronic mode or any other mode was not developed till time. So, what used to happen? People used to just simply roam from village to village, place to place, and see whatever is happening, and used to collect the stories of those places. And whenever they go to a new place, they would tell that story to the people of that particular place. So, with time, we know in every profession, with time, the competition increases. अभी पहले के जमाने से सिर्फ कुछ 10-15 लोगों ने काम, फिर कुछ और लोगों ने भी ये काम शुरू किया. So for that, they had to improve their way, improve their methods. So to improve their methods, they had to make it more entertaining and more attractive to the eye of normal people. So what they did, they started introducing instrumentation. They started introducing rhythmic schemes. They started making poems, sher shairi. So all the stories were then transformed in forms of music, in forms of songs, poems. So कविताएं लिखी जाने लगी, गाने लिखे जाने लगे हर अलग अलग जगह की स्टोरी के ऊपर, और वो आगे पास ऑन की जाने. So while this used to happen, लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया कि ये एक बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग वे है इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज को पास ऑन करने के. सो इन एंशियंट टाइम पढ़ने लिखने की जो इजाजत होती थी वो हर किसी को नहीं होती. नॉट एवरीबडी वाज अलाउड to read and write or to learn how to read and write. So only Brahmin men, only Brahmin priests were allowed to learn how to read and write. और हमारे इंडियन स्कल्पचर, हमारे जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं बहुत सारे, उसमें बहुत सारी नॉलेज है और बहुत ही फिलोसफिकली डीप फिलोसफिकल नॉलेज है. अभी वो लोगों का काम था, उन लोगों को लगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर इंसान के पास ये नॉलेज जो है पास करें. बट हाउ? सिंस नॉट एवरीबडी हैज लर्न हाउ टू रीड और राइट और चीजों को एक्सप्लोर कैसे करना है, सो उनके थॉट और होराइजन ऑफ थॉट इज नॉट वेरी वाइड इनफ. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया जो सारी उनके हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में जो नॉलेज थी उसको स्टोरीज के फॉर्म में कन्वर्ट किया और लोगों को पढ़ाना, उन लोगों को सिखाना स्टार्ट किया. So Kathak actually cultivated in temples at that time, and since it was developing in temples, it actually developed a spiritual style. क्योंकि अगर आप मंदिर में हैं तो आपको बहुत से भगवानों की कहानियां जो हैं वो लोगों को बताने के लिए बहुत से गीत लिखे गए, बहुत से कविताएं लिखी गई और लोग उसी को डांस फॉर्म में, कथक के फॉर्म में डिपिक्ट करते थे. दे वुड यूज एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज टू कन्वे ऑल दो स्टोरीज. तो उस जमाने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो राधा कृष्ण की बहुत सी कहानियां हैं, हमारी रामायण के बहुत से सीन हैं जो कि एक्चुअल में डांस फॉर्म में कन्वर्ट करके लोगों ने दूसरों को सिखाना स्टार्ट. विद टाइम, धीरे धीरे जैसे जैसे मंदिरों में डेवलप होने लगा, बहुत से राजा महाराजा उस जमाने में होते थे एंड दे यूज्ड टू टेक प्राइड in knowing, in saying that we, the king or the ruler of this particular place, we support art. We take pride in saying that we are the savior of art. We spread this knowledge in so many places and all that. So what people used to do, they would appreciate it and अपने राज दरबार में इन नृतकों को, इन कथकारों को बुलाया जाता था
कि आप प्लीज कोई भी ऑस्पिशियस मौके पर, आप चाहे गणेश चतुर्थी है या नवरात्रे हैं, उन सब में सबको बुलाया जाता था और उनसे कहा जाता था कि आप ये जो स्पिरिचुअल, ये जो कहानियां हैं जो आप अपने कथक फॉर्म से आप अपने जो मंदिर में लोग आते हैं उनको सुनाते हैं, आप हमारे दरबार में आके भी लोगों को ये नॉलेज दीजिए। इस तरीके से मंदिर से उठ के हमारा कथक धीरे धीरे करके राज दरबारों की तरफ चलने लगा और वहां पे भी उसे खूब इज्जत मिली और खूब उसको वाहवाही मिली। उसके बाद आया हमारा मुगल्स का era। अभी हम जानते हैं कि मुगल जो है वो आए हमारे इंडिया में किस तरफ से आए। वो हमारे वेस्टर्न नॉर्दर्न एरिया जो है उस तरफ से पार्ट से वो आए। तो जब वो उस नॉर्दर्न एरिया पार्ट से मुगल्स जब इन्वेड करे हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में, तो द पार्ट जो कि सबसे पहले अफेक्ट हुआ था, दैट वाज आर नॉर्दर्न पार्ट, आर गुजरात, राजस्थान, हमारे जयपुर, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा कश्मीर, हमारा इस तरफ का जो एरिया था वो सबसे पहले इफेक्ट हुआ। सो बिकॉज ऑफ दैट एंड सिंस हमारा कथक इज द ओनली डांस फॉर्म जो कि उस एरिया में डेवलप हो रहा था, was the one जो सबसे पहले इफेक्ट हुआ और सबसे ज्यादा इफेक्ट। सो मुगल्स आ गए इंडिया में, आके रहने तो लगे, बट दे wanted to feel attached with the earth, with the power, with the culture, with people of this country. So they thought, what better way of feeling attached or connected with the roots to if we start exploring this art form of this particular place. So they started adapting Kathak in their own style. So just like in Raj Darbar Kathak used to be there, they said हमारे मुगल दरबार में भी हमारे उसमें आप प्लीज आके परफॉर्म कीजिए। बट दे स्टार्टेड टेकिंग अ लाइकिंग विद द डांस फॉर्म एंड दे सेड कि ओके, इसको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ हम इसको एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए इसको यूज करने के लिए इसमें बहुत से मॉडिफिकेशंस, इसमें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मॉडिफिकेशंस किए गए और इसको एक स्ट्रक्चर्ड डांस फॉर्म में कन्वर्ट किया। One very big change that happened in Kathak was the introduction of spins. Initially, Kathak was more like while you are sitting, or even if you move if you want to convey some action. Let's say I'm depicting the very well-known story of a gopi taking a matka and going there. Then she heard something. So if you're showing this motion of going somewhere, there will be movement. But the chakkars, there's so many movements that was added later by Mughals. It was initially not there. So if you have seen Sufiana dance forms, you will understand how Sufi people, when they go in trance, okay, when they say that they feel connected with the one that is up there, they go into a trance in which they put one hand up there, second hand down here, and they just start rotating and they lose the sense of time and anything. Sorry for that. Yes. So they would lose the sense of time and anything that is around them. They would just know the connection that is they are establishing with the one that is up there. So those spins were added in Kathak dance form, which is right now actually the spirit of Kathak. After that came a lot of structured footwork. We know हमारे कथकार जाने जाते हैं इस चीज के लिए कि जितनी रफ्तार से और जितनी सफाई से उनके कदम चलते हैं वो किसी के नहीं चल सकते। हमारे यहाँ जब कथक किया जाता है तो आपका 1 गुण से लेके 8 गुण से लेके 16 गुण तक की मात्राएं होती हैं। 16 गुण का मतलब है एक ही सेकंड में एक ही बीट पे 16 बार आपके पैर जो है वो जमीन पे टैप करते हैं। तो जब इतनी रफ्तार, इतना जो फुटवर्क है, ये सब काफी हद तक हमारे मुगलों ने इस हमारे डांस फॉर्म को दिया कि इसको बहुत स्ट्रक्चर्ड बनाया। इसमें एक बहुत वेल मेड फ्रेमवर्क ऐड किया। सेकेंड, बिकॉज उनका पर्पस एंटरटेनमेंट के लिए था, तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस पे फोकस दिया जाने लगा rather than going spiritual expressions of all those nutcut, छेड़छाड़ और नोक-झोंक expressions. All these were added in this, and all these actually enhanced the form as well. Second thing, another thing which happened was transformation in the costume as well. Okay, so initially people used to wear saris, lehenga, choli, whatever was the dress culture, and they would perform with.
since in Mughal era, anarkali was a very big, very known and very popular dress, and it had that flare in it. Okay, so that flare used to look very beautiful when you are taking all those spins in Kathak. So this anarkali was added as a uniform cut. Then there was a waist belt added so as to enhance the shape of a woman or anybody. If even a man is dancing, they wear a waist belt. So that waist belt was added to enhance your shape and beauty. Then in Indian culture, we generally wear a mang tika, but in Muslim culture, there is a pasa or a jhumar, which is actually worn slightly towards left. So if you see right now, many people actually, when performing Kathak, they wear this pasa or jhumar instead of mang tika. As of now, today, both of these things are accepted and both of these things are appreciated equally. Nothing is like if you are going to wear a lehenga choli, it is not going to be appreciated, or you have to wear uh, anarkali dress only. Kathak is a dance form that has accepted and adapted to both the cultures very well. Kathak does not differentiate and say that, okay, I am a Mughal dance form or I am a Hindu dance. It adapts both of them and it gives to both of them as well. So both the people, culture from both people from both the culture can happily enjoy this. Then at that time, Kathak was on its peak. Then came the British era. And what happens is, with music, with art, you get the feeling of motivation. Whatever kind of music and art I am going to show you, you are going to get the feeling of that particular kind of music and art, whatever I'm sure. So what used to happen if I'm right now going to sing Vande Mataram by A.R. Rahman, everybody is going to start feeling that energy and patriotic feeling in their heart, and they are going to get this feeling of doing something for the country because that is what kind of feeling that you get from that music. It moves you. So, because Britishers didn't want us to feel that kind of energy or movement or will to do anything, so they started degrading Kathak. So what happened is, what happened can you please hold on a moment? Is there anything wrong? I'm talking to my tech team. Just give me a minute. Is anything wrong? Let's continue. So what Britishers did was they could not actually tell you कि just no, we are going to ban this. No, because it will erupt a feeling of rebellious. So उसकी वजह से क्योंकि इतना रिबेलियस फीलिंग जो है ये सब ना क्रिएट हो जाए, दे स्टार्टेड प्लेइंग माइंड गेम्स. व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड डिग्रेडिंग कथक. दे स्टार्टेड सेइंग ऑल दीस पीपल जो कि कोई डांस फॉर्म को अडेप्ट कर रहे हैं, म्यूजिक और इस तरीके के आर्ट्स को अडेप्ट कर रहे हैं, ये सारे इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है. दे स्टार्टेड डिग्रेडिंग देम कि इनमें इनके साथ कितना बुरा हो रहा है. दे आर पुअर पीपल, दे डोंट हैव एनी डिग्निटी. इनको समाज में इज्जत नहीं है क्योंकि ये इस तरीके के चीजें करे. एंड फ्रॉम देयर दे एक्चुअली स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉच गर्ल्स एंड नॉच बॉयज. सो उन्होंने क्या किया, जो भी हमारे डांसर्स, हमारे जो कथाकार्स और जो हमारे दूसरे आर्टिस्ट थे जो कि इस तरीके की फीलिंग्स, जो कि एक एनर्जाइज और पेट्रियाटिक फीलिंग्स को इवोक करने के चांसेस रखते, उन सबको जो है दबाने के लिए उन्होंने एक तरीके से माइंड गेम्स के लिए, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल, देयर इज दिस स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस book, The Wrongs of Indian Womanhood. So they said कि all the women जो कि इस तरीके से डांस किया करती हैं, एक्चुअली उनके साथ कितना गलत हो रहा है, कि उनके वुमेनहुड के साथ इतना गलत हो रहा है कि उनको इस तरीके से डांस करना पड़ रहा है, विच वॉज नॉट द केस. बट बिकॉज एक इमेज क्रिएट होने लग गई कि इन लोग जो है पैसों के लिए इन्हें ये सब करना पड़ता है, इन्हें पैसों के लिए डांस करना पड़ रहा है, इन्हें पैसों के लिए ये सब करना, तो लोगों ने इसको डिग्रेड करना स्टार्ट किया, इसे अपनाने से मना करने लगे, इससे दूर रहने लग गए. तो कथक जो है थोड़े से एक लुप्त एरा में चला गया, उस टाइम पे थोड़ा सा डिमीन हो गया, थोड़ा सा छुप गया. और इस तरीके से हमारा जो कथक है वो कोर्टिसान्स के एरिया में पहुंचा.
एंड यही कोर्टिसान्स थी जिन्होंने हमारे कथक को, हमारे ट्रेडिशन को बचा के रखा आज तक, जो कि आजादी के बाद एक्चुअल में वापस से लोगों ने सीखा, वापस से उसको वो इज्जत उसकी मिली। और ये इज्जत कथक को वापस दिलाने में कुछ बहुत बड़े लोगों के बहुत बड़े हाथ रहे हैं, जिसमें से दो मैंने नाम यहाँ पे सिर्फ लिखे हैं। एक हमने लिखा है लेट पृथ्वी महाराज जी के लिए, और एक लेट सितारा देवी। The Sitara Devi ji used to be called the queen of Kathak. She used to be the queen of Kathak. The expressions, the energy, the movements that she would have. And Birju Maharaj ji and his entire family. आगे किसी हम क्लास में बात करेंगे इस बारे में। बिरजू महाराज जी की कितनी पीढ़ियों से उनकी पूरे परिवार ने कथक को बहुत कुछ दिया है, फ्रॉम विद्याधीन महाराज जी से अर्चन महाराज जी से लच्छू महाराज जी, उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके ताऊ जी, सबने कथक को बहुत कुछ दिया है। और कहना चाहिए कि एक तरीके से ये बिरजू महाराज जी की खुशकिस्मती भी रही कि वो उस एरा में जन्म लिए, और जब आजादी हमें मिल गई और साथ में टेक्नोलॉजी जो है वो इतना ज्यादा एडवांस भी कर गई कि उनके इस नृत्य को दुनिया में हर जगह पे कोई जान पाया। आज हमको हर किसी को सबसे बड़ा नाम सिर्फ बिरजू महाराज जी का ही पता होता है, बिकॉज ये उस एरा में रहे जब टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट किया। लेकिन इन्हीं के फैमिली के बहुत से पूर्वज भी रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है। काफी लोग उनके बारे में नहीं, जो लोग जिस फील्ड में है कथक में, जो सीखते हैं कथक को दिल से सीखते हैं, जो एग्जाम्स देखते हैं, प्रॉपर तरीके से सीखते हैं, शिक्षा जो उसकी लेते हैं, उन्हीं को मोस्टली सब कुछ पता होता है। लेकिन बिरजू महाराज जी के बारे में इवन नॉर्मल लोगों को पता होता है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी ने, मीडिया ने, इंटरनेट ने जो है इंफॉर्मेशन को इतना इजीली पास करवाया, और हमारे बिरजू महाराज जी जो है उस जमाने में थे हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो कि हम ले सकते। तो इस तरीके से हमारा कथक जो है पूरा डेवलप हुआ। कहीं कुछ सालों के लिए वो बीच में गुप्त भी हुआ, लुप्त भी हुआ, और उसके बाद ये वापस से अपने स्टेज पर आया है, और राइट नाउ बहुत ही ब्यूटीफुली हमारे इसमें चमक रहा है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट होता है खत्म। हम अब स्टार्ट करेंगे थोड़े से प्रैक्टिकल पार्ट्स के बाद। ठीक है, हमारी स्टोरी ऑफ कथक हमारी यहाँ पे खत्म होती है कि हम आज के जमाने में जो हमारा कथक है वहां तक पहुंच चुके हैं। ये तो हो गई बहुत सारी हमारी थ्योरी कि हाँ भाई ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। थोड़ा प्रैक्टिकल भी करते हैं, जब तक करेंगे नहीं जानेंगे कैसे।